Hello everyone, welcome to ANET classes. My name is Neeraj Joshi and today we are going to have some numericals on Coulomb's law. So let's discuss it one by one. So starting from our first question, three charges 5 into 10 to the power minus 7 minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and 1 into 10 to the power minus 7 coulomb are held fixed at the three vertices of an इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीन चार्जेस हमारे पर हैं. तो वी आर टेकिंग एट पॉइंट ए 5 into 10 to the power minus 7 कोलम, ये एक चार्ज है हमारे पास, माइनस 2.5 into 10 to the power minus 7 कोलम. दिस इज द चार्ज लेट्स से ऑन सेकंड वर्टिस, and on the C 1 into 10 to the power minus 7 coulomb. So what we have to find? We have to find the force on C due to both A and B. So if you will see, the direction of this is like force on C due to A. So it will repel because both are having same sign, and this is minus charge, this is plus, so the direction will be like this, force on C due to B. The angle between these two forces will be 120 as it is an equilateral triangle and this angle will be 60 degree. तो आपको समझ में आ गया हो कैसे हमने डायरेक्शन ली है. Both are having same magnitude, therefore हमने एरो ऐसे दिखाई हुई है, रिपेल कर रहा है. ये माइनस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है. So now coming to the magnitude, force on C due to A 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. The value of Q1 5 into 10 to the power minus 7 and Q2 is 10 to the power minus 7 upon R square. R square is 5 square is 25 and changing centimeter into meter it will become 10 to the power minus 4. तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर भी कर लिया, साथ में सेंटीमीटर को चेंज भी कर लिया है हमने मीटर में. तो क्या बन जाएगा हमारा ये एक्सप्रेशन. सो 9 into 5 and taking this 10 to the power minus 4, we can write it 10 to the power 2 into 10 to the power 2 and taking other power also, plus 9 minus 7 and minus 7. So this calculation part you can solve जैसा आपको easy लग रहा है. तो मैंने तो यहाँ पे क्या किया है, 10 to the power minus 4 को दो में स्प्लिट कर दिया और बाकी को पावर्स को लिख लिया है. So if I can cancel, this is 100, 25 4 जा 100, so it will become 180. 4 5 20, 20 into 9 it will become 180, and solving this power I will get 11 minus 14 it will be minus 3. So from here I will get the value 0.180 न्यूटन. तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं. मैंने तो यहाँ पे क्या लिया है, 10 to the power minus 4 को जो मैं न्यूमरेटर में ले गया तो मैंने दो में स्प्लिट कर दिया ताकि मैं 25 से 100 को कैंसिल कर सकूं. तो ये तो मेरे पास आ गया कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना होगा. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम 1 upon 4 pi epsilon naught. The value of Q1 will be 2.5 into 10 to the power minus 7 and Q2 is 10 to the power minus 7 upon R square. The distance is same, that is 5 square, 25 into 10 to the power minus 4. So if you will see this equation and this, you will find that the value of this here it is 2.5 and here it is 5. तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ट्वाइस आया होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 5 की वैल्यू है, बाकी सारी क्वांटिटी हमारी सेम है. तो बिना इसको सॉल्व करे हम सिंपली कह सकते हैं, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं सो आई विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आल्सो. सो वी कैन राइट इट 0.09 न्यूटन. तो इसको हम कह देते हैं F, तो ये वाला हमारा बन जाएगा 2F. तो इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करना हमारा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट विल बिकम मोर इजी. तो अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हमें निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि एक फोर्स जो कि हमारा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है
दूसरा हमारा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है, एंड बोथ दिस फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. So if we will take their vector sum, so we can write F net. कितना आएगा F net? It will be under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 120 degree. So here we have to find the value of cos 120 also. So it will become cos 90 plus 30. It will become minus sine 30 as it is in second quadrant. So it is minus 1 by 2. So putting the value of F1, F2. So the value, if I am saying F1 is F, so it will become F square, and in place of F2 I am putting 2F. So it will become 4F square plus 2 in place of F1, F in place of F2, 2F. And the value of cos 120 is minus 1 upon 2. So by solving it, what I am getting here, f square plus 4f square is 5f square, minus this will be cancelled by this 2f square. So 5 minus 2 will be 3f square. Okay. So थोड़ा सा इसको भी रफ कर लेते हैं. Till then you can think how we have solved this equation. एक बार आप solve कर सकते हैं कि कैसे हमने ये कैलकुलेशन करी है. एंड सो हियर वी विल गेट अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ f. ठीक है, तो क्या किया है मैंने, cos 120 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन यहां पर है हमारा, और ये 2f इंटू f विल बिकम 2f स्क्वायर. तो 4 प्लस 1 5f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, इट विल गिव मी रूट 3f स्क्वायर. तो देखो कितना इजी हो चुकी है हमारी इससे कैलकुलेशन. इट हैज बिकम रूट 3 टाइम्स ऑफ f. So root 3 value is 1.73 into 0.09. So erasing the other part also, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए. तो यहां पे देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है. 9 3s are 27, 2 carry, 9 are 63, 65, 6 carry, 9 are 9, 10 and 15. So 1 2 3 4 1 2 3 4. So we are getting 0.1557, which is approximately 0.16 Newton. So this is the resultant of these forces. तो इस क्वेश्चन में देखो, whenever you are solving some numericals, आपको देखना है कि कैसे आप उसकी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे तो हमें ये मिल गया और हमने वेरिएबल ले लिया. You can think for other thing also. Okay, so let's move the second numerical. So in this question, two particles A and B having charges 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. So क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा A चार्ज है, यहां पे हमारा एक दूसरा चार्ज है. तो पहला चार्ज जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है हमारा 8 into 10 to the power minus 6 कोलम है. सेकेंड वाले चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, minus 2 into 10 to the power minus 6 कोलम. The question is asking where should a third charge be placed? तीसरा चार्ज हम कहां पे रखें कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे. तो चलो सबसे पहले सोचते हैं कि कहां कहां रख सकते हैं उसको. हम पहले बात करते हैं क्या हम इनके बीच में रख सकते हैं. तो देखो वो चार्ज इट कैन बी प्लस और माइनस, वो तो हमें पता नहीं है चार्ज कैसा भी हो, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई चार्ज रखा तो दिस इज ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड. ये उस चार्ज को क्या करेगा, सपोज वी हैव केप्ट अ पॉजिटिव चार्ज हियर, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा और फोर्स यहां को लगेगा. दिस विल अट्रैक्ट, तो फोर्स यहां को लगेगा. तो इसका मतलब दिस विल नॉट गोइंग टू कैंसिल इट, तो हम यहां पे तो नहीं रख सकते. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी. अच्छा, सेकंड थिंग, अगर मैं ए के लेफ्ट में रखता हूं, ठीक है, ए के लेफ्ट में रखता हूं तो दिक्कत क्या आने वाली, चलो वो भी देख लेते हैं. सपोज आई एम कीपिंग द चार्ज हियर, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं ए से देखूंगा इसकी डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पे डिस्टेंस हमारी कम हो रही है तो फोर्स बढ़ जाएगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है 2 से 8 है,
तो दोनों चीजें फोर्स को बढ़ा रही है, तो एक ज्यादा चीज और एक कम वाली चीज इसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि हम इस चार्ज को यहां पे भी नहीं रख सकते। तो अब हमारे पास एक चीज और है, एक जगह और है, ऑन द राइट साइड ऑफ बी। सो हियर वी कैन कीप आवर चार्ज एंड लेट्स सी, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज रखा है तो, एंड दिस इज ऑफ प्लस, तो ये रिपेल करेगा। सो बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये पक्का कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा फोर्स होगा सी वाले चार्ज पे ए के कारण, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑन सी जो लग रहा है बी के कारण, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो एक फोर्स हमारा अगर राइट को है तो दूसरा लेफ्ट को होना चाहिए ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें उसको रखना कहां चाहिए, इट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ बी। सो लेट्स कैलकुलेट कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। सो द वैल्यू इज k q1 q2। तो charge at C, I am writing it QC, and the value of charge on A is 8 into 10 to the power minus 6, and the distance of square of the distance। तो distance अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेपरेशन इनकी हमें दे रखी है 20, तो A से जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं x, so it will become 20 plus x। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, इट विल बिकम 20 प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन k, द वैल्यू ऑफ चार्ज एट C, द वैल्यू ऑफ चार्ज एट B, एंड दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 अपॉन इट विल बिकम x स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारी। तो यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है k and qc, दिस बोथ विल बी कैंसल आउट, एंड 10 की पावर माइनस 6, द पावर पार्ट विल आल्सो कैंसल। सो मल्टीप्लाइंग 8x स्क्वायर इक्वल्स टू, so I can cancel it also by 2, 20 plus x whole square। So if I will cancel, I will get 4। So 4x square equals to 20 plus x का whole square। Taking a square root both the side, so it will become 2x equals to 20 plus x। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, तो 4 बन गया हमारा 2 x स्क्वायर का x। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ही कर रहे थे। तो कैसे हमने सॉल्व किया आप देख सकते हैं, हमने सीधे स्क्वायर कर लिया। एक तरीका ये भी है कि हम पूरा इसको ओपन करें, देन वी कैन सॉल्व। तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस इट, कैसे हमने सॉल्व किया। पहले एक बार आपको खुद से करके भी देखना है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So the third question based on the Coulomb's law we are getting here is, two identical charges pair suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास एक कॉमन पॉइंट से दो स्पेयर सस्पेंडेड है। तो एक स्ट्रिंग हम ऐसे ले लेते हैं कुछ, और एक दूसरी हमने यहां पे ऐसे ले लिए। दो स्पेयर्स हैं, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जो इनकी लेंथ है दैट इज गिवन टू एस एल, और जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग में वो डी दे रखी है। ठीक है, तो अभी हम आगे की बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट अ कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट से अगर चार्ज लीक कर रहा है तो dq अपॉन dt, ये हमें क्वेश्चन ने दे दिया है टू बी द कांस्टेंट पार्ट। देन द क्वेश्चन इज सेइंग इसकी वजह से हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट द स्पेयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से ना ये पास आने लगे हैं। देखो होगा क्या, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है। फिर अप्रोच ईच अदर, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पास आने लग गए, क्योंकि अब चार्जेस कम हो गए हैं, तो कम रिपल्शन लग रहा होगा। So the question is saying that the v varies as a function of distance x। जो इनकी वेलोसिटी है जिससे ये आ रहे होंगे वो x से कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं
हम इसकी एक सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे ये पूरा हमारा x की दूरी पे है, यहां से हम हाफ लेंथ पे इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ है हमारी ये हो जाएगी x/2। दिस एंगल ऑलरेडी हैज बीन गिवन टू अस, दैट इज थीटा। दिस विल बी अवर 90 डिग्री एंगल। तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे स्ट्रिंग में एक टेंशन लग रही होगी, लेट्स से t, ठीक है। तो अगर मैं इस t को रिजॉल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारा t cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट हियर इट विल बी t sin थीटा। तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। और एक और चीज देखेंगे हम, नीचे लगेगा वेट इसका mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक कोलम फोर्स का रिपल्शन, एंड दैट विल बी Fe, ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो क्या इक्वेशंस बनेंगी अगर हमारी इसको हम देखें, T sin थीटा ये बराबर है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के, T cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू mg। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, this is our equation second. Dividing both the equation, what we will get? We will get tan theta equals to Fe upon mg. ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। अब with the help of trigonometry we can easily find the value of tan theta। तो वो हमें कितनी मिल जाएगी tan theta की वैल्यू? यहां से देखो हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा tan theta is equivalent to sin theta, which is equivalent to the value of sin theta will be p upon h. So here the perpendicular will be x/2 and hypotenuse will be L. तो स्मॉल एंगल के लिए हमें पता ही है कि tan थीटा और जो sin थीटा है वह अप्रॉक्सीमेट इक्वली होते हैं। तो अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, x/2L इक्वल्स टू, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है ये कितनी होगी, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड mg। तो यहां पे अगर हम देखेंगे जो x क्यूब का रिलेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आ चुका है, q के स्क्वायर के। तो यहां तक तो हमें मिल गया ये रिलेशन x और q में, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिलेशन है हमें किसमें चाहिए, वेलोसिटी में। सो अगर मुझे x से वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके। चलो करते हैं इसको डिफरेंशिएट और पता करते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। सो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन व्हाट आई विल गेट, 3x स्क्वायर dx by dt is directly proportional to 2q and here it will be dq upon dt। तो देखो हमें यहां पे इजीली पता ही है, इसको इरेज कर लेते हैं। होप सो आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। तो देखो यहां पे क्या बन गया हमारा, दिस इज कांस्टेंट ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, ये तो कांस्टेंट है। इसने हमें दे दिया है वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल गई है। तो आई एम राइटिंग ऑन द ओनली द वेरिएबल पार्ट्स, एक्स स्क्वायर ये वेलोसिटी हो गई हमारी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। और क्यू यहां से हम कह सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2। यहां पे हमें ये मेंशन था कि एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स की पावर 3/2 के। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर ले Q की, तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर 3/2। तो V की वैल्यू अगर हम निकालें, V किसके प्रोपोर्शनल है, 3/2 माइनस 2। तो V इज प्रोपोर्शनल टू, इफ वी विल सॉल्व इट वी विल गेट x टू द पावर -1/2, ठीक है। 2 2 is 4, 3 - 4 will become -1 and upon 2। So this is the relation जो हमारा ये वेरिएशन आया हुआ है। तो v किसके प्रोपोर्शनल है, x की पावर -1/2 के। सो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा FBD की हेल्प लेनी पड़ी है। तो एक बार हल्का सा मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दें तो हमने कैसे कैसे लिया इसमें। सबसे पहले FBD बहुत सिंपल है, टेंशन आपको लेनी है, उसको दो कंपोनेंट में हमने बांट दिया, T cos थीटा एंड T sin थीटा, एंड द अदर फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग वी हैव स्टेटेड आउट।
वन इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहां से हमने दो इक्वेशन बनाई, वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाली। एंगल्स स्मॉल थे इसलिए हमने ये ले लिया कि sin थीटा tan थीटा के बराबर है, वरना हमें इसकी वैल्यू लेनी पड़ती, वो भी कांस्टेंट पार्ट ही होता। तो उसके बाद सॉल्व करके जो हमें मेन पार्ट था ये था कि हमें केवल वेरिएबल्स पे फोकस करना है, v और x पे, और बाकी चीजों को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो हमें केवल रिलेशन देखना था कि v और x में कैसे निकालें। ठीक है, सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।